Welcome to IGNOU Assistant Registrar 2020 lecture series. This is Malvika Sagar. In this lecture, we will discuss about the development of educational management in the post-independence era. Before starting the video, I request you to click on the subscribe button so that you can access to my latest videos as soon as I upload. Also, do not forget to like and comment in the comment section down below on what topic of the syllabus for assistant registrar job opportunity in IGNOU you want me to discuss. So without further a delay, let us get started. Also, many of you have requested me to make a bilingual video for the sessions that I'm taking. So I will try to include Hindi language also inside it while explaining, while discussing the video and the content. So let us get started with our video. Uh, Let us quickly read what it is written over here that let us begin our journey by seeing the changes in educational management that take and education management taken place after independence. As a follow up of the recommendation of the Sargent Plan, now endorsed and supported by the independent India, a separate Ministry of Education came into being in 1947. So you see, there can be a possible question on the topic when Ministry of Education came into being. Please note down this. Ministry of Education came into being in 1947. Ministry of Education 1947 में आई थी. Education, with few exceptions, continued as a state subject. However, with the starting up of Planning Commission, the central government began to take keen interest in education. जो एजुकेशन था एज अ सब्जेक्ट, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस रखे गए थे, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट यू नो जब प्लानिंग कमीशन के बारे में सोचा गया कि प्लानिंग कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में आया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि वो एजुकेशन के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, तो उसी चीज को देखते हुए जो एजुकेशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर एचआरडी के अंदर आ गया, और एचआरडी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम रख दिया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री आती है, और ये 1985 के अंदर हुआ था. ठीक है, तो अगर आपको ये चीज एक आसानी से समझनी है और अगर क्वेश्चन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब चेंज हुआ था, तो एचआरडी हमारा बना था 1985 के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब लॉन्च हुआ था 1947 के अंदर. ये 2 तारीखें 2 साल है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा. Some of the important committees and commissions responsible for development of educational management in India are discussed below. मतलब ये है कि जो 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर हुई हैं हमारी कंट्री इंडिया के अंदर, उन 2 के बारे में अब हम पढ़ते हैं. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49. The era of educational reconstruction inevitably followed in the wake of social and economic reconstruction initiated by the national government after 1947. Education being the chief instrument for the reconstruction and transformation of the society. The first step taken in the direction of educational reconstruction were appointment of series of commission to survey, study, review, and recommend improvements in the different sectors of education. To look into the problems of university education, the University Education Commission was appointed by the Government of India in 1947, 1948. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर से आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब अपॉइंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1948 के अंदर, और ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप के अंडर, in the pursuance of the recommendation of the Central Advisory Board of Education and also of the Inter University Board. राइट, तो ये 2 लोगों 2 पार्टीज 2 इंस्टीट्यूट्स के
रिकमेंडेशंस के थ्रू हुआ था, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाने का, जो कि 1948 के अंदर लॉन्च हुआ था। और ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर लॉन्च हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अंडर। The commission that felt all the universities should constituted as autonomous bodies, it further recommended that, इन्होंने जो suggestions थे, एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन आवर कंट्री इम्प्रूव करने के लिए कुछ इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे इस कमीशन ने। और ये क्या रिकमेंडेशंस थे, एक बार हम इनको देख लेते हैं। University education should be placed in concurrent list, which means that both states and central government could legislate on the subject of education। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो आपका एजुकेशन है ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। तो आंसर इसका सिंपल सा है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, राइट। बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। The central government should be responsible for finance, coordination of facilities in special subjects, adoption of a national policy, ensuring minimum standards of efficiency, and liaison between the universities and research laboratories. Universities should be teaching institutions rather than affiliating types. It recommended the elimination of affiliating universities. Government colleges should be transformed into constituent colleges to give rise to federative universities. College governing bodies should be properly constituted. The aim of affiliated college should be to develop into a unitary university and later into federative one. इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो एम है एक किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज का, उसका एम होना चाहिए कि वो एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी के साथ में आए और उसके बाद में वो फेडरेटिव तरीके से काम करे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन शुड बी सेट अप फॉर ऑल एलोकेशन ऑफ फंड। तो आप ये जो रिकमेंडेशन है इसके अंदर एक यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन यूजीसी जिसको हम जानते हैं, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो है वो सेटअप करी जाए और जितना भी सारा फंड है एलोकेशन ऑफ फंड वो इसी के थ्रू हो सके। The state should recognize its responsibility for the maintenance of standard and financing of the higher education। ये किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए जितना भी फंड हायर एजुकेशन के लिए लगता है वो खुद से इसको मेंटेन करे। The aid to provide college for for buildings equipment as for recurring expenditure, the latter to be on a uniform basis, says half of the present teacher's salary and one third of the other approved expenditure। जो एड्स हैं, जो टीचर्स की सैलरी है और जो एक्सपेंडिचर है वो पहले से ही आना चाहिए। आधे जो टीचर्स के सैलरीज हैं वो होना चाहिए प्लस वन थर्ड ऑफ द अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर वहां से आना चाहिए। Steps to be taken to amend income tax law to encourage donation for the educational purpose. Additional grants made to be additional grants be made to the colleges and universities in order to enable them to give effect to recommendation. The government should contribute in additional annual amount of about 10 crores for the development of university education through the next quinquennium, right? A 3-year degree course for the first university degree to be introduced। जो 3 साल की डिग्री का कोर्स था वो इसी रिकमेंडेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। Rural universities be established in various stages in the country। Second point is the Secondary Education Commission 1952। The Dr. Radhakrishnan Commission had surveyed the field of secondary education in a passing manner, and had admitted that our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reform। This led to the establishment of All India Commission for Secondary Education, appointed in 1952 under the chairmanship of A. Lakshman Swamy Mudliar। So here an important point कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उनकी कमीशन ने जब सर्वे किया तो उनको ये लगा, उन्होंने अपनी सर्वे में ये पाया
कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है वो सबसे वीकेस्ट लिंक है हमारी एजुकेशनल मशीनरी के अंदर, और उसके अंदर अर्जेंट रिफॉर्मेशंस मतलब अर्जेंट चेंजेस उसके अंदर चाहिए। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑल इंडिया कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन को अपॉइंट किया जाए, एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो कि हुई थी 1952 के अंदर। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंडर आता है और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। और इस कमीशन ने ऑफर किया था सजेशंस जिसको रिकॉग्नाइज करेगा सेकेंडरी एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू गोल्स एंड नीड फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर किस चीज की जरूरत है और क्या क्या हमारे को चाहिए। तो ये जो कमीशन है ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा और हमारे कंट्री की सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर बदलाव लेकर के आएगा। The commission was equally concerned with qualitative improvement of the schools, new trends in examination guidance। तो जो हमारी जो कमीशन है ये बनी है, ये क्या है, ये क्या देखेगी, ये क्वालिटेटिव की एक क्वालिटी जो है हमारे सारे इंडियन स्कूल्स के अंदर इम्प्रूव करा जाए और एग्जाम और उनके गाइडेंस के ऊपर भी ध्यान जो है वो दिया जाए। सेकेंडरी स्कूल वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट रिकमेंडेड बाय द कमीशन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी स्कूल का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा 1952 के अंदर इस कमीशन के थ्रू आया था, राइट। द फॉलोइंग वर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। Secondary education should commence after 4 or 5 years period of primary or junior basic education, should include a middle or a senior basic secondary age of 3 years, the higher secondary stage of 4 years. The present intermediate stage should be replaced by the higher secondary stage, which should be of 4 years duration, 1 year of the present intermediate being included in it. As a consequence of the preceding recommendations, the first degree course in the university should be offered for 3 years duration. For those who passed out the high school should be offered provision for the pre-university course for 1 year. Admission to professional colleges should be open to those who have completed higher education course or have successfully taken pre-university course. Multi-purpose schools should be established wherever possible to provide varied courses of interest to the students with diverse aims, aptitudes, and abilities. Technical schools should be started in large numbers, either separately or as a part of multi-purpose school. Schools should be located in close proximity to appropriate industries and they should function in close cooperation with the industry concerned. The Commission's recommendations were integrated in the successive 5 year plans and began to be implemented both at the center and the states in 1954. तो जो ये कमीशन थी ये 5 year सक्सेसिव प्लान के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था दोनों सेंटर और स्टेट के अंदर, और इसका ईयर याद रखिएगा 1954। आगे बढ़ते हैं द इंडियन एजुकेशन कमीशन के ऊपर, जो कि हुई थी 1964 से 66 के अंदर। The Commission realized that the existing facilities and arrangements for the training of educational administrators are inadequate. The pre-service education for the administrator is neither necessary nor possible. Training for an educational administrator is needed not only because the task he or she is required to perform are difficult and complex, but mainly because it is necessary to orient him or her to the program of educational expansion and improvement, which has to be implemented in the next 2 decades, and the role of which educational administration should play therein. From this point of view, commission was made with the following recommendation. तो जो ये इंडियन एजुकेशन कमीशन है वो कहती है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं और अरेंजमेंट्स हैं ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की वो इनएडिक्वेट है। जो प्री सर्विस एजुकेशन है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ना ही वो नेसेसरी है और ना ही वो पॉसिबल है देना। इसीलिए जो ट्रेनिंग है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को देने के लिए वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कि नहीं, क्योंकि उसके काम उस तरीके से हैं, लेकिन क्योंकि उसके काम डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है और उस इंसान को उस काम के लिए जानकारी या एक तरीके का ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है।
तो जो एजुकेशनल एक्सपेंशन है और इम्प्रूवमेंट है, उसको बनाने के लिए अगले 20 सालों के लिए जो रोल है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एक सेट कर दिया जाएगा। और इस कमीशन ने, इंडियन एजुकेशन कमीशन ने कुछ पॉइंट्स ऑफ रिकमेंडेशंस दिए थे। The State Institute of Education, in collaboration with the universities where necessary, should organize in-service education programs for of all the non-gazetted educational staff on the administrative and the inspectional side. They should provide in-service training of about 2 months to every officer in every 5 years of his service. In addition, they should also organize the conferences, seminars, and workshop for the gazetted staff. तो इन्होंने ये कहा कि जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हर हर 2 महीने की हर 5 साल के बाद में। और इसके साथ ही साथ उनको कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज कराने जाए। आई मीन इन लोगों के लिए जो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप है गेजेटेड स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए, ताकि ये लोग अपने आप को अपडेटेड रख सके। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन should run a national staff college for senior educational administrator of the state department of education। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनको एक नेशनल स्टाफ कॉलेज जो है सीनियर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चलाना चाहिए, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। Some incentives should be provided for the officers who would improve their qualifications materially through programs of in-service education. The National Staff College will be vested with the following functions. जो कुछ incentives हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट है या कुछ लीव पॉलिसी है, या चाहे उनका जो भी किसी भी तरीके का एक इंसेंटिव देना चाहिए जो भी उन लोगों के लिए जो कि इन एज एन ऑफिसर वहां पे काम कर रहे हैं और अपनी क्वालिफिकेशंस को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू। तो जो नेशनल स्टाफ कॉलेज है वो उसके ऊपर क्या-क्या काम या क्या-क्या फंक्शंस इस नेशनल स्टाफ कॉलेज के होंगे, आइए उनको एक बारी हम देखते हैं। इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द पर्सोनेल ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, कि भाई मतलब वो इन सर्विस जो एजुकेशन है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए वो चलाया जाएगा या उन लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा। रिसर्च इन द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो रिसर्च है वो भी एजुकेशन का एक पार्ट होगा। कंडक्टिंग केस स्टडीज, मतलब उनको केस स्टडीज का काम दिया जाएगा कि वो लोग केस स्टडीज लिखें। कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, इन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के ट्रेनिंग जो है वो इनके लिए कंडक्ट कराई जाएगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस से रिच है और दोनों ही फील्ड्स को अलग अलग लोग आकर के अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे और थोड़ा सा कुछ टाइम वो लोग उनके साथ में रहेंगे भी। Arranging periodical conference, seminars and workshop on the matters relating to educational, administrative and management, कि इस पॉइंट का मतलब सिंपल सा यही है कि पीरियोडिकल मतलब मान लीजिए हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर 1 साल बाद कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर अरेंज करी जाएंगी, मतलब उनको करवाना पड़ेगा और ये लोग इनके अंदर इसमें पार्ट लेंगे। अंडरटेकिंग पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग अ जर्नल ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ये मतलब है कि जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, केस स्टडीज लिखेंगे, तो उसको कहीं पब्लिकेशन करने के लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। तो ये जो कमीशन है ये एक जर्नल ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रपोज करता है, ताकि जो लोग इस तरीके की फील्ड ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो अपना रिसर्च पेपर्स, केस स्टडीज जो है इसके अंदर पब्लिश कर सकें। So regarding the private organized schools, the commission made the following recommendation. तो जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं उसके लिए इस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, आइए उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं।
Private schools should have right to exist, and if they do not seek aid or recognition from the state, there will be little or no interference with them. मतलब सिंपल सा यही है कि प्राइवेट स्कूल्स आ सकते हैं, उन प्राइवेट स्कूल को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो किसी भी स्टेट से किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं मांग रहे हैं, तो जो स्टेट है उनको उनके मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। द कमीशन सजेस्टेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जैसे कि बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स थे, उनको कंपल्सरी रजिस्टर करना है। However, private educational institution, those whose dependence on public revenues would be very large, should be gradually assimilated with the system of public education. कि एक ऐसे स्कूल जिनकी पब्लिक रेवेन्यू से मतलब पैसा आता है, तो उनको पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम के साथ में मिक्स कर दिया जाना चाहिए. Each private school should have management committee consisting of the representative of the voluntary organizations conducting it. जो हर एक प्राइवेट स्कूल है, उसकी अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, और वो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि खुद से ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि हाँ ये हमारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स हैं, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इट्स टीचर्स, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्लस जो वहाँ के टीचर्स हैं, ये सब उस कमेटी का पार्ट होंगे. The staffing of the private school should be broadly on the pattern prescribed for the government or local authority schools, and their remuneration should be similar. जो पैसे हैं, जो सैलरीज हैं, उनको एक सिमिलर पैटर्न पे मिलने चाहिए. The grants in aid to school should be equal to the total teacher cost plus the total number of teacher cost minus income from the fees at a standard rate after allowing the prescribed percentage of free studentship and prescribed contribution of the management. ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये इसमें सिंपल सा यही कह रहा है कि उसका आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी एक इंसान की फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके जो खर्चे हैं प्लस आप कितने स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं, और मैनेजमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, वो सब देख करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे. The commission observed that the vast country like India, it is necessary that the constitution of a university should be formulated in sufficiently general terms so as to permit innovation and experimentation. मतलब सिंपल सा यही है कि इस कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि हमारी कंट्री क्योंकि बहुत बड़ी है और काफी डाइवर्स है, इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा जरूरत है यूनिवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की, ताकि जितने सारे तरीके के इनोवेशंस या एक्सपेरिमेंटेशंस हैं वो हर स्टेट के अंदर हो सके, तो इसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए. The commission was of view that the main act of a university should lay down the structure and organization in broad terms, and relevant details may be prescribed by the statutes and ordinances. This, in opinion of the commission, was essential because of the frequent changes in the academic life due to the rapid expansion of knowledge, particularly in science and technology. The Commission, in its report, stated that the universities should evolve dynamic techniques of management and organizations suited to their special functions and purposes. It also made further following recommendations. The representations of non academic personnel element on the university bodies should be mainly for the purpose of presenting the wider interest of society as a whole to the university, but not to impose them. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है नॉन एकेडमिक पर्सोनेल का, वो ऑन यूनिवर्सिटी बॉडीज शुड बी, मतलब कि जो उसका मेन पर्पस है वो क्या है कि वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को लेकर आना, और उसको एक बताने के लिए, बट किसी के ऊपर इम्पोज या फोर्स करने के लिए नहीं. जो यूनिवर्सिटी है वो एक उनको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी अपने डिपार्टमेंट या स्कूल्स को चलाने के लिए, और अपने यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट या स्कूल्स खुद से डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट को रन करना है. There should be a joint committee of teachers and students in each department and in every college, and a central committee under the chairmanship of the head of the institution for the discussion of the common problems and difficulties. क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को ये राइट दिया जाना चाहिए कि वो उसको किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट को चलाना है,
इसीलिए जो डिपार्टमेंट है उसको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर टीचर प्लस स्टूडेंट्स दोनों होंगे। उसका चेयरमैनशिप होगा उनका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो किन बारे में बात करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनको क्या कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, और अगर प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स बता सकते हैं या टीचर्स बता सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम सामने आएगी तभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो इम्प्रूवमेंट 100% होगी। The court or the academic council should be the policy making of the university, with the membership of not more than 100, of which about half should be external members. जो एकेडमिक काउंसिल है जो पॉलिसी बनाएगा, वो उसके लिए एक बॉडी जो है वो यूनिवर्सिटी को सेटअप करनी चाहिए। उसके अंदर 100 मेंबर्स होंगे, और उन 100 में से जो 50 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब आधे मेंबर्स जो होने चाहिए, वो आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर के मेंबर्स होने चाहिए, अंदर के टीचर्स या फिर आपके एक्सपर्ट्स नहीं। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकेडमिक काउंसिल के अंदर जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, तो उसके मेंबरशिप के अंदर कितने लोग होते हैं? उसके मेंबर्स होते हैं 100, जिसके अंदर से 50% मतलब 50 मेंबर्स हमारे एक्सटर्नल मेंबर्स होने चाहिए। अगला पॉइंट पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द वाइस चांसलर एज चेयरमैन शुड कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 मेंबर एंड अबाउट द हाफ ऑफ द इंटरनल एंड हाफ एक्सटर्नल। मतलब ये है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखिए एकेडमिक काउंसिल के अंदर 100 लोग हो सकते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जिसके अंदर वाइस चांसलर जो होगा वो चेयरमैन होगा, जो वीसी होंगे वो चेयरमैन होंगे, और उसके अंडर जो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 15 या 20, आप 20 मान के चलिए, 20 मेंबर्स होंगे, और इन 20 के अंदर से आधे इंटरनल लोग प्लस मतलब 10 मेंबर्स जो हैं वो एक्सटर्नल होने ही चाहिए। The academic council should be the sole authority for determining the courses of the स्टडी एंड स्टैंडर्ड। जो एकेडमिक काउंसिल है जिसके 100 मेंबर्स थे, जिसके 100 मेंबर्स में से 50 मेंबर्स एक्सटर्नल मेंबर्स थे, उनके पास में सोल अथॉरिटी है, ये उनके पास में 100% राइट है ये डिटरमाइन करने का, ये तय करने का कि जो कोर्सेज हैं पढ़ाई के और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है तो एकेडमिक काउंसिल के थ्रू उसको चेंज किया जा सकता है। Each university should have an academic planning board for permanent planning and evaluation detached from day-to-day administration. हर यूनिवर्सिटी के पास में एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड होना चाहिए। एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? परमानेंट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए है, जो कि डिटैच रहेगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इसको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बट ये प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन को देखेगा, और ये कौन देखेगा? एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड। The governors of the state should be visitors of all the universities in the state, should have power to direct inspection or inquiry into affairs of a universities। जो गवर्नर है स्टेट के, वो सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं स्टेट के अंदर, उसके अंदर वो विजिटिंग रहेंगे, विजिटर्स रहेंगे, और उनके पास में डायरेक्ट इंस्पेक्शन या फिर इंक्वायरी का जो राइट है वो रहता है। देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस इन every affiliating university to advise the university on all the matters related to affiliation of colleges। अब एफिलिएशन की जहां बात आती है वहां पर काउंसिल ऑफ एफिलिएशन कॉलेजेस आता है। हर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो कि एफिलिएटिंग कॉलेजेस करती है, उसके पास में, यूनिवर्सिटी के पास में काउंसिल ऑफ एफिलिएटिंग कॉलेज होना ही चाहिए, ताकि वो यूनिवर्सिटी को सारे मैटर्स जो है कॉलेजेस से रिलेटेड, एफिलिएटिंग कॉलेजेस से रिलेटेड, वो डिसीजंस एंड प्लानिंग उसके ऊपर वो कर सके। Some of the principal recommendations of the Commission with respect to school system are adoption of a common school system of public education as the national goal and its effective implementation in a phase program spread over 20 years। तो जो हमारा पब्लिक एजुकेशन है उसका एक नेशनल गोल की तरह उसको काम किया जाना चाहिए, और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो फेज प्रोग्राम है वो 20 साल तक का कम से कम होना चाहिए।
Participation in programs of community development and national reconstruction should be integral part of all the education from primary to undergraduate stage. जो कम्युनिटी को डेवलप करने वाले प्रोग्राम्स हैं या फिर नेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने वाले कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेशन हर प्राइमरी से लेकर अंडर ग्रेजुएट स्टेज तक हर पार्ट ऑफ द एजुकेशन का वो मतलब उस तरीके के कोर्सेज होने ही चाहिए. Provision of free and compulsory education of good quality for all the children up to the age of 14 years as envisaged in the Article 45 of the Constitution. हमारे Constitution Article 45 के अंदर लिखा है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. हर एक बच्चे के लिए कंपल्सरी है एजुकेशन, हमारी गुड क्वालिटी एजुकेशन, कम से कम 14 साल की उम्र तक. Training of effective, efficient leadership at all levels by expanding secondary and higher education and providing equal opportunities for all the children of merit and promise irrespective of economic status, caste, religion, sex or place of residence. जो ट्रेनिंग है और एफिशिएंट लीडरशिप है हर किसी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के कैंडिडेट को देनी चाहिए और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों के लिए, चाहे वो मेरिट के बेसिस पे है एंड प्रॉमिस के बेसिस पे है, चाहे उसका कुछ भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, उसकी कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, वो किसी भी सेक्स का हो या फिर उसका कोई भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो. ठीक है. The new education system should be consisted of 3 years of pre-education, primary stage of education from 7 to 8 years divided on the lower primary stage of 4 to 5 and higher primary stage of 3 or 2 years. A lower secondary stage of 3 or 2 years, higher secondary stage of 2 years of general education or 1 to 3 years of vocational education. A higher education stage having a course of 3 years or more for the first degree and followed by the course of second or research degree for varying durations. लेकिन आप इस चीज का एक ध्यान रखिएगा, ये तो जो एजुकेशन सिस्टम या जो जिस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये बात कर रहा है, अब हमारी कंट्री के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हैं. उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी. ये एक पुरानी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है जो अभी तक चलती आ रही थी और जिसके अंदर थोड़े से चेंजेस भी हुए थे, बट अब क्योंकि न्यू एक एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के अंदर, तो शायद अगर सवाल बनेगा तो वो न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के ऊपर बनेगा, पुरानी के ऊपर वो नहीं बनेगा. इसीलिए जो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन टू कम एट द एंड ऑफ 10 इयर्स ऑफ स्कूलिंग. जो कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन होगा कम से कम 10 साल की स्कूलिंग के बाद में होना चाहिए. Secondary schools should be of two types: higher schools providing a 10-year schooling and higher secondary schools providing a 11 to 12 years. Higher education secondary course beginning in the class 11 and 12 provide specialized subjects. Transfer of the pre-university stage from the universities and affiliated colleges to secondary schools by 1975-76 and the duration of the course to be lengthened by the 2 years, that is 1985 to 86 के अंदर ये हुआ था. The University Grants Commission should be responsible for effecting the transfer of all the pre-university or intermediate work from the university and affiliating colleges to the schools. Duration of the first degree should not be less than 3 years and the duration of the second degree to be 2 years or 3 years. जैसे नॉर्मल हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं वो मिनिमम 3 साल की होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करते हैं वो 2 साल की होती है मिनिमम. ठीक है. तो यही वो इस पॉइंट के अंदर बताना चाह रहे हैं कि मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए. जनरली इंजीनियरिंग अब 4 साल की होती है और जो सेकेंड डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 साल की होती है और कई बार 3 साल की भी होती है. Some universities should start graduate schools with 3 years and master degree courses in certain subjects. The 3-year special courses for the first degree begin at the end of the first year of the present 3-year degree courses should be started in selected subjects and selected institution. हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किन्हीं सब्जेक्ट के लिए वो एप्लीकेबल होगा. Standard calendar to be worked out by the Ministry of Education and the University Grants Commission in consultation with the state's government
एंड यूनिवर्सिटीज कंसर्न्ड कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और यूजीसी है विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज कंसर्न के साथ में एक कॉमन कैलेंडर बनाए, ताकि जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर जैसे कुछ भी कॉमन एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, तो वो हर एक बच्चे को प्रॉब्लम ना हो कि आज हमारा एग्जाम है या कल हमारा एग्जाम है, उसी किन्हीं डेट्स के ऊपर वो एग्जाम होगा, और उस तरीके से हर एक बच्चे को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा अपना प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे या कॉमन कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैलेंडर के हिसाब से हर कोई यूनिवर्सिटी चलेगी, तो किसी भी स्टेट के किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। The Education Commission also investigated, explored various aspects of educational administration in the country, and made the following recommendations for bringing about the elasticity and dynamism in the educational administration. The administrators should change their attitude and cultivate an openness of mind and the spirit of inquiry rather than the rule of thumb approach. The modern officer oriented system, where the most of the work will be done by the officers at their own level with the help of small secretarial staff, should be appointed. The practice of holding periodic reviews over 3 or 5 years of important administrative practices with the view of chopping off dead wood and putting in the fresh grafts when necessary should be established. Comparative studies of practices in administrative matters and different states may be undertaken by interstate contacts. State Institute of Education and National Staff College for Education Planners and Administration should take the lead and organize appropriate training courses for the educational administrators. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये 1968 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एनईपी जिसको हम कहते हैं, और ये इसका अमेंडमेंट कुछ सालों बाद भी हुआ था, और तीसरी बार अब जो आई है वो 2020 के अंदर आई है। ठीक है, तो इन्होंने इसका बस इतना सा ही आप इसको याद रखिएगा कि ये 10+2+3 का पैटर्न बोला था इन्होंने, और इट आल्सो एडवोकेटेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली द इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन to reach a level of expenditure of about 6% of the national income as early as possible, कि भाई नेशनल इनकम का जो 6% है उसका ऊपर हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा हमारे को करना चाहिए, और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इनको 10 years +2 years +3 years का पैटर्न जो है इनको ऑर्गेनाइज करना है। 1992 के अंदर फिर से एजुकेशन पॉलिसी का, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिवाइज किया गया, और इस रिवाइज के अंदर आप लोग जितने भी सब लोग अभी पढ़े हैं, आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग करी है, लगभग उन उन सभी बच्चों का जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था वो यही रहा होगा, और इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, इंटीग्रेशन करी गई कंट्रीज डेवलपमेंट एंड मैन पावर नीड्स को देखते हुए, decentralization and creation of spirit of autonomy for educational institute किया गया, एक preeminence to the people involvement including association and non-government agencies and voluntary effort, include inducting more women expert professional in planning and management of education, establishing the principle of accountability in relation to the given objective. National level, the Central Advisory Board of Education will play a pivotal role in reviewing the education development, determining the changes required to improve the system, and monitoring implementation. It will be function through the appropriate committees and the other mechanisms created to ensure contact with and coordination among the various areas of human resource development. The Department of Education at the center and state will be strengthened through the involvement of professionals. A proper management structure in education will entail the establishment of Indian education system as an all India service. It will bring a national perspective to this vital sector. The basic principle, functions, and procedures of recruitment to this service will be decided in consultation with the concerned state governments. The state governments may establish State Advisory Board of Education on the lines of uh, CAB,
Effective measures should be taken to integrate mechanisms in the various state departments concerned with the human resource development. The special attention will be paid to the training of educational planners, administrators, and heads of the institution. Institutional arrangement for this purpose should be set up in stages. So, district and local level educational management. The district board of education will be created to manage education up to the higher secondary level. The state government will attend to this aspect with all the possible expedition within a multi-level framework of educational development. Central, state, district, and local level agencies will participate in planning, coordinating, monitoring, and evaluation. A very important role must be assigned to the head of the educational institution. Head will be specially selected and trained. School complexes will be promoted on a flexible pattern so as to serve as the network of institution and synergic alliances to encourage professionalism among teachers, to ensure observance of norms of conduct, and to enable the sharing of experiences and facilities. It is expected that the developed system of the school complexes will take over much of the inspection functions in due course. Local communities, through appropriate bodies, will be assigned a major role in program of the school improvement. Voluntary agencies and aided institution. देखिए इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सी बात है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986 के अंदर, उसने क्या किया था, एक ब्लूप्रिंट निकाला था मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन का कि ग्रास रूट लेवल से लेकर के हायर लेवल तक किस तरीके से काम होगा। और जो भी इमर्जिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था और जो उनके गोल्स थे, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी इन एडिशन टू एजुकेशन क्वालिटी, ये लोग चाह रहे थे कि लोकल कम्युनिटीज, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल जो है उनके थ्रू ये प्रमोट करे जाए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसलिए जो एजुकेशन है उनको दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर काम करेंगे तो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जैसे सीबीएसई एंड बीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें जो है ये दो बोर्ड्स बनाए गए थे सेंटर एंड स्टेट लेवल पर, और जो कि फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, बट द ग्राउंड रियलिटी डज नॉट गो हैंड इन हैंड with the system wherein we put questions like to what extent people's participation is ensured. of course ये तो एक क्वेश्चन है कि किस हद तक लोग आपका साथ देंगे, लेकिन साथ देना और एक सही तरीके से चलना ये बहुत जरूरी होता है। तो सीबीएसई और बीएसई जो है वो बनाए गए थे, और जो पार्टिसिपेशन थी लोकल कम्युनिटीज के साथ में उसकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर इस तरीके से किया गया था ताकि जो पॉलिटिक्स है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो ज्यादा अफेक्ट ना करे और अवेलेबल हो लोकल रिसोर्सेज उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। जो एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पीओए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनके हिसाब से जो डाइट है DIET, ड्यूली असाइन द वर्क ऑफ ट्रेनिंग द टीचर्स एंड हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस in order to develop the true professionalism and to ensure observance of the norms of the conduct and to enable the sharing experiences and facility। इसीलिए आप प्लीज इसको याद में रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि पीछे के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन बनेगा, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसको ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग का और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग का जो जिम्मा था या फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, DIET। ठीक है। और एजुकेशनल सर्वे जो थे वो कौन कंडक्ट कर, किसने किया था, एनसीईआरटी ने किया था और एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसने ये रिपोर्ट किया था कि बहुत ज्यादा अनट्रेन्ड टीचर्स हैं जो कि अपन एज इन एज अ टीचर वो काम कर रहे हैं लेकिन वो खुद अनट्रेन्ड है। 10th पास पर्सन्स आर गिविंग लेक्चर टू द 10th क्लास स्टूडेंट्स, कि मतलब सिर्फ इतना सा है कि स्कूल्स के अंदर टीचर्स का ऐसा हाल है जो खुद ही 10वीं पास है वो ही 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल अनट्रेंड है।
In order to make the system successful, we have to give the utmost importance to its proper implementation with the active participation of the community based on pure research in the field of management of education, right? तो इसकी समरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि ब्रिटिश स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हायर ऑफिशियल्स के साथ में काम किया जाता था और वो कौन-कौन थे, स्टेक होल्डर्स थे, टीचर्स थे, स्टेक होल्डर्स कौन-कौन थे, जो टीचर्स थे वहाँ पे पढ़ाने वाले बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे एंड कम्युनिटी थी, ठीक है? और फिर उसके बाद में जो कन्वेंशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक कॉलोनियल लेगेसी के थ्रू आता है, डायलेटरी है और टाइम कंज्यूमिंग है। और जो हमारा यू नो अभी हमारे को अर्जेंटली नेसेसरी ट्रांसफॉर्म करना है, हमारे को मेंटेन करना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कैसे करेंगे? अपनी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर को हम डेवलप करेंगे और हमारे पास में जितने भी मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उसका ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ जो इनएडिक्वेसीज है और ट्रेडिशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस गैप है, जो प्लान हमने बनाए थे और जो अचीवमेंट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और जो कम्युनिकेशन गैप भी है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे कि हमने पॉलिसीज प्रोसेसेस तो बना लिए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी काम नहीं कर रहा, तो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना है, लोगों को किस तरीके से अवेयर कराना है, तो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। जो पहले से ही प्री ऑक्यूपेशन एक्सेसिव है नेचर के अंदर या प्रोसीजर्स है जो जिसके अंदर एक्सपेंस होता है और जो टास्क ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू न्यू टास्क विदाउट सेंस ऑफ क्राइसिस एंड फेलियर टू कीप द पीस पेस विद द डायनेमिक्स ऑफ चेंजिंग एजुकेशनल लीड। मतलब कि ये जो फेलियर है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, जो क्योंकि एजुकेशन के चेंजिंग नीड्स हैं उसको हम जो फेलियर है उसको कम करेंगे, उसका हम उसी स्पीड से हम आगे चलेंगे ताकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हम साइड बाय साइड अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस हम करते जाएं। Describing the role of present administration, Professor K.G. Sai Saidine साइडाइन, ठीक है, सेज कि जो मोटो है इन द ओल्ड ब्रिटिश रेजिम वाज रिपोर्टेड टू बी डिवाइड एंड रूल। ये तो हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश लोगों का मोटो था वो यही था हमारी कंट्री के अंदर कि इनको डिवाइड करो फिर रूल करो। एंड अब हमारे को क्या है, मोटो को चेंज कर देना चाहिए। इट शुड बी डिवाइड एंड सर्व, दिस नाउ बीइंग एन अटेम्प्ट टू थ्रू what is now known as democratic decentralization and other words. This is the essence of democratic living, the capacity to assume responsibility within one's own sphere and initiating the self-directed activities to meet the group of the interest and the purposes. Okay, ये भी एक जैसे रिसर्च हुई थी उसमें भी ये निकल कर के आया था कि एजुकेशन मैनेजमेंट जो है उसके अंदर प्रोफेशनल एक्टिविटी उतनी देखी नहीं गई है और जो ऑफशूट ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स हैं स्कूल लेवल पर उनका ओवरफ्लो उतना है नहीं और जो ओवरफ्लो है कंटेंट स्पेशलाइजेशन का एट द हायर एजुकेशन लेवल उतना नहीं है। तो जो सिचुएशन है वो डिफरेंट नहीं है पहले इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एरियाज के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज है। इसीलिए तो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है या फिर जॉइंट डायरेक्टर्स हैं यूनिवर्सिटी के या वाइस चांसलर्स या फिर रजिस्ट्रार्स हैं, उनका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ जाता है? उनका सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन ईदर इन द फील्ड ऑफ पेडागोजी और इन द फील्ड ऑफ सब्जेक्ट और कंटेंट। इसलिए जो उनकी जॉब्स हैं वो किस तरीके से लगेगी कि भैया वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए और जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या फिर वो जो भी उनका फील्ड ऑफ एरिया है उसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द मैनेजमेंट इज नॉट सीन एज द प्री रिक्विजिट ऑफ द मैनेजरियल पोजीशन एंड एक्टिविटीज। ये देखा गया है कि भाई एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ही नहीं है अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हो तो लेकिन ये चीज होनी चाहिए।
even when it comes to directors of education in the state and deputy secretaries onwards at the national level. Such posts are often offered to IAS cadre who have a record of turnover state. Moving from labor to rural development to finance, whatnot. Education management is thus not seen as a specialized area of study. एजुकेशन मैनेजमेंट को एक सही तरीके से एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर ऑफ स्टडी माना ही नहीं जाता, उसको देखा ही नहीं जाता। इस तरीके की पोस्ट जो होती है वो यूजुअली आईएएस ऑफिसर्स को ही ऑफर की जाती है। Management education per se has matured in a significant way in this country with the establishment of the 4 Indian institutions of management, IIM जिसको हम मानते हैं। Management department is in more than 50 universities, 5 IITs, and a large number of specialized institutes in this field. Nevertheless, the education is not usually an area of operation in such management institute. In other words, the program and experiences would indicate that the total thirst of management education in this country has gone into business and industrial organizations. It would be evident from the above analysis that the professional management and education have more or less remained mutually exclusive and reflection of this situation and is seen in the research on educational management. इसीलिए जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उसके अंदर वो कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, वो बीएड के अंदर पढ़ाया जाता है, एमएड में, एमए एजुकेशन के अंदर, एमफिल के अंदर, एंड वेरियस प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटीज. इट इज ऑल्सो टॉट in service level through the various state and national level institute. Such programs are based on primarily on the management theories which have their own origin in western countries. ये जितने सारे प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं इन सारी डिग्रीज के अंदर, इन सब का जो बेसिस है, इन सब के रूट्स हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लाई करते हैं, जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं। और जो लेकिन थोड़ी बहुत जो स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंटली एलियन टू इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर वो थ्योरीज उतनी एप्लीकेबल नहीं है। Secondly, even when the theories emerge out of Indian experience, these are primarily in the industrial and business sector, which have very specific profit-oriented goal compared to the education, health and other sectors. लेकिन अगर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ अगर थ्योरीज हैं भी तो भी वो बहुत कम है, और अगर हैं तो भी वो कुछ बिजनेस सेक्टर्स के अंदर या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ एंड दूसरे सेक्टर्स के अंदर वो कम है। तो ये था आपका पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीजें, और इसके अंदर हमने 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, और हमने समझा कि क्या प्री रिक्वेस्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को बताए, और इंडियन एजुकेशन कमीशन हमने पढ़ाई करी। साथ में हमने जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था वो भी पढ़ा, और यूजीसी के बारे में भी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में भी हमने पढ़ा। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बारी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। एक मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने के लिए, और बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से रिकॉर्ड करके समझाने में। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी आगे अब आने वाले कुछ टाइम के लिए, अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है तो मेरा वीडियो अपलोड करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, और अगर आपको इसमें से सीखने के लिए कुछ भी पॉइंट अगर आपको लगा हो कि हाँ आज आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज आप इसको एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे काफी हद तक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता। और प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि मैं और किस तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ऑल्दो मैं जो सिलेबस है इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार जॉब के लिए, वो मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। एमसीक्यूज मैं सोच रही थी कि मैं इसको एकदम एंड में लेकर के आऊं, लेकिन एमसीक्यू याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप
जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें, और अगर आपने एक बारी पढ़ लिया होगा, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस कंटेंट में से मार्क कर लिए होंगे, तो एमसीक्यू कुछ भी बन के आता है, आई एम श्योर आपको आंसर पहले से ही पता होगा। तो यही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करें मेरी वीडियो को। हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जो लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं आज ही के दिन में कोशिश करूंगी कि 3 वीडियोस में अपलोड कर सकूं। Thank you so much. Please stay tuned into my channel. Please like, do, share, and comment down in the comment section below, and let me know how can I help you more. Thank you so much. Have a very good day. Bye bye.